नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरें लेकर। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। बीते कुछ दिनों से शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में चोरी, छिनतई जैसे लूटपाट की घटना में पुलिस ने काफी नियंत्रण किया था। वहीं एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री के दुर्गापुर और पानागढ़ के 2 दिवसीय दौरे की ही देर रात अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए एक बड़े अपराध का अंजाम दिया। ताजा मामला अंडाल के धूप चुरैया इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हुआ। खबरों के मुताबिक यहां बुधवार की देर रात कुछ शस्त्रीय अपराधियों ने पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। उनको बुरी तरह से मारा पीटा और कैश काउंटर से लगभग 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अंडाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, मामला की जांच में जुट गई है। तीनों घायलों को दुर्गापुर के विधान नगर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 कर्मियों को छोड़ दिया गया, लेकिन एक अन्य कर्मचारी की हालत ज्यादा खराब होने से उनको भर्ती कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज खंगाल कर दोषियों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इधर गुरुवार सुबह जब पेट्रोल पंप के आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी इस घटना से दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग किया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा, पेट्रोल पंप से हुई लूट की रकम को बरामद करना होगा। इस घटना को लेकर पुलिस रहस्य में आ गई है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। আপনাদের মোটামুটি তো একটা হিসাব হয়ে গেছে না? নতুন বলো তো দেড় উপরে আছে। তো এই যে কালকে ডাকাতি হয়েছে কি মনে হচ্ছে? এটা মনে হচ্ছে এটা অনেক দিন আগের থেকে কেউ প্ল্যান করা হয়েছে। এসে বোধ প্রথমে ক্যাশ ড্রয়ারকে অ্যাটাক, হট করতে কেউ জানতে পারবে না যে ক্যাশ ড্রয়ার কোথায় আছে না আছে। প্রথমে এসে বোধ ক্যাশ ড্রয়ার অ্যাটাক, তারপর আমাদের ছেলেকে এরকমভাবে মারধর। কী নিয়ে এসেছিল ওরা? সব আর্মস নিয়ে এসেছিলো, বন্দুক নিয়ে এসেছিলো, চাকু নিয়ে এসেছিলো। আর কিসে এসেছিল ওরা? ওরা এসেছিলো এখান থেকে, আপাতত আমাদের পাম্পের এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে হেঁটে হেঁটে ঢুকছিল। তারপর মানে ওই পারে আর কি রোডে ওদের গাড়ি ছিল, হয়তো ওই পারে চলে গেছে। আপনারা তো রাত্রে কাজ করে নিরাপত্তা বোধ হচ্ছে? হ্যাঁ, এবার তো এই ঘটনাটা হওয়ার পর থেকে তো এবারে আমাদের একটুখানি ভয় ঢুকে গেল। এই যে আমাদের 2টো ছেলে ইনজার্ড হয়েছে। আপনার নাম? আকাশ দিবর। এটা ঘটলো কী মনে হচ্ছে? এটা প্রি প্ল্যান একটা চুরি। আর কি বলবো, মানুষের মানে আমাদের ভয় বেড়ে গেল, আতঙ্ক বেড়ে গেল। কখনো দেখিনি, মানে আজ ধরুন 4 বছর হলো এই পাম্পটা, কখনো পর্যন্ত কোনো ছোটোখাটো চুরি হয়নি। হঠাৎ রাত্রেবেলায় 6-7 জন এসে আর্মস নিয়ে এসে স্টাফ দিকে মেরে ধরে এইভাবে ডাকাতি করলো। চুরি তো নয়, এটা ডাকাতি বলতে পারেন। এতগুলো আর্মস নিয়ে এসে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি যা বলবেন। কতজন আপনার স্টাফ ইনজিওর্ড হয়েছে? আমার 2 জন ইনজয়েড, মানে স্টাফ ভালো ইনজয়েড হয়েছে। একজন মাথায় এখনও অ্যাডমিট আছে হসপিটালে, মাথা ফেটে গেছে। আর আরও 2-3 জনকে মেরেছে, মানে তারা মানে সেরকম হালকা ইনজয়েড, সেরকম কিছু নেই। মানে রাতে যতগুলো স্টাফ ছিল ততগুলো ইনজয়েড হয়েছে? হ্যাঁ, সবাইকে মেরেছে। যাতে 4 জন ছিল 4 জনকেই মেরেছে। ঢুকে সোজা ধরুন আর্মস নিয়ে ঢুকে গেছে, ঢুকেই অ্যাটাক। প্রথমে মারধর, পিস্তলের বাঁট নিয়ে ঠোকাঠুকি, মারামারি, মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। তারপরে
ওই যা ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে আপনার যে এটা আপনার সঙ্গে কোনো দুশ্মনী আছে কি ধরনের ঘটনা? দুশ্মনী কি বলবো, দেখুন কি হতে সব কিছুই পারে। কোনো দুশ্মনরা উস্কানি দিচ্ছে সেটাও হতে পারে, বা মানুষের নিরাপত্তা বেড়ে যাচ্ছে সেগুলো নিয়েও কিছু হতে পারে, নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে। ওই বলতে পারছি না এটা কি হবে, আমার কোনো আইডিয়া হচ্ছে না। আনুমানিক কত টাকা চুরি গেছে? আনুমানিক প্রায় 1,05,000-7,000 টাকার মতন গেছে। আপনার নাম? আমার নাম সুকমল পান্ডে, অন্ডালগ্রাম পাম্পের মালিক। रानीगंज के तार बांग्ला मोड़ के पास मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फिटनेस एकेडमी के मोहम्मद अमजद और पीस इंडिया के जिला ऑर्गेनाइजिंग सचिव शेख जाकिर ने उमर अली, राजा अंसारी, रियाज अहमद और मोहम्मद साहिब आलम को सम्मानित किया। इन सभी ने हाल ही में गोवा में हुए किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीता था। उन सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इनके कोच जोहर आलम को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर शेख जाकिर और मोहम्मद अमजद ने इन सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही सफलता पाते रहें तो भविष्य में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त करेंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। मैं इसके जाकिर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स पीस इंडिया। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज रानीगंज और दुर्गापुर पूरे वेस्ट बंगाल में टॉपर हुए हैं। गोल्डन और सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया गोवा में। देखा जाए तो ये बहुत गर्व की बात है, इसलिए आज हम लोगों ने तार बांग्ला मोड़ पे इन लोगों का स्वागत किया हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स पीस इंडिया की तरफ से, जिसमें अमजद भाई और भी हमारे बहुत सारे मेंबर मौजूद है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग NGO की तरफ से इन लोगों को सहयोग किया जाए और हमेशा हम लोगों का सहयोग इन लोगों के साथ रहेगा। आपको तार बांग्ला में कोई संस्था की तरफ से सम्मानित की जाए, आगे की आपकी टारगेट क्या रहेगा? अब आगे टारगेट यही है कि नेक्स्ट टाइम ये लोग और बेटर करें किक बॉक्सिंग में, क्योंकि किक बॉक्सिंग ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड गेम हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, साई से रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। ठीक है, साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें बच्चों का फ्यूचर है। जो नेशनल लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर ब्रॉन्ज जो रहेंगे, उसका एजुकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको स्पोर्ट्स कोटा से जॉब देगी, या और भी बहुत सारा फैसिलिटी। अपकमिंग ओलंपिक 2-4 साल बाद कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलते हुए निकल गया वहाँ भी जा सकता है। देखा जाए कि सिल्वर और गोल्ड जी, कौन हासिल किया? ये गोल्ड दुर्गापुर से 2 बच्चे किए हैं, क्या नाम? उमर अली और राजा अंसारी। ये 2 बच्चे गोल्ड, ये पूरा बंगाल से 2 ही गोल्ड है, उमर अली और राजा अंसारी। और सिल्वर है MD साहिब आलम, ये रानीगंज से है, और रोज़ अहमद ये चितरंजन से है। इनके कोच है अमित सर। क्या नाम? मेरा नाम है मंसूर आलम। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी रानीगंज में हम लोग चलाते हैं। इसमें कराटे और किक बॉक्सिंग हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, दोनों ही गवर्नमेंट गेम है। चितरंजन निवासी रोज अहमद ने गोवा में हुए बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे शिल्पांचल का नाम रोशन किया है। उनसे हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने एक खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कैसे उनको ये कामयाबी मिली। रोज ने बताया कि उनको ये कामयाबी उनके कोच के कारण मिली है। हालांकि उन्होंने ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि कोच की सारी कोशिशों के बाद भी उनकी अपनी मेहनत कम पड़ गई, जिसकी वजह से वो स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा कि उनको बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक है। उन्होंने अपने कोच को ही अपना आदर्श बताया। इसके साथ ही उन्होंने सभी लड़कियों को सारी झिझक भूलकर और सब डर को दरकिरार कर घर से बाहर निकलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एकमात्र यही तरीका है जिससे वो अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकती है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब कट चुकी है जिनकी उम्र पत्थर तोड़कर, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जी हाँ, 3rd और एक बहुत अच्छी एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बॉक्सिंग पे गोल्ड मेडल लिए है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये महिला जो है
ये जो बच्ची है मेरे साथ मौजूद है, जो जुड़ रही है हमारे साथ, ये कहाँ से क्या संघर्ष करके आगे बढ़ी और इनका आगे का लक्ष्य क्या है, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आसानसोल टाइम्स न्यूज़। सबसे पहले आपका आसानसोल टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। किस तरह आपको ये गोल्ड मेडल मिला, क्या बने संघर्ष में क्या आप किए हैं, बॉक्सिंग में जो आप आज मेडल हासिल किए हैं, तो कुछ तो वजह होगा, लक्ष्य यही था कि गोल्ड आए, लेकिन मेरा मेहनत थोड़ा कम पड़ गया। हमारे कोच सर अमित पासवान हमें हमेशा प्रैक्टिस कराते रहते थे, हमें हमेशा क्लास बुला के हमें इस चीज़ की कोचिंग देते रहते थे और हमेशा हमें बोलते रहते थे कि अच्छा लड़ना है, अच्छा करना है। मैं और भी चाहती थी कि मेरे तरह और भी बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़े, लेकिन हम चितरंजन वेस्ट बंगाल से हम एक ही लड़की बढ़ पाए हैं। मैं और भी चाहती हूँ कि और बढ़े, और यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने कोच सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, और आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है बाकी गोल्ड लाने के लिए। शुरुआत कहाँ से की थी आप? शुरुआत मैं क्लास 8 में की थी, जब कोच सर हमारे स्कूल में आते थे सिखाने, तब मुझे इस चीज़ की चाव लगी और मैं इस पे जुड़ गई। मैंने बॉक्सिंग से शुरू से आपको शौक रहा? बॉक्सिंग इसमें कोई आपको तो आइडियल होगा कोई? आइडियल तो हमारे कोच सर ने हमें बहुत कुछ दिखाया, उनसे ही हम वही हमारे आइडियल बने हैं अभी तक में। और जैसे हम देखते रहते हैं आए दिन हमारे खबरों में हमारे देश का नाम रोशन करती हुई महिलाएं जैसे मैरी कॉम वगैरह, ये सब हमें देख कर पता चला है कि ये सब करना चाहिए। आज आपको सम्मानित ये जो गोल्ड मेडल है, या सम्मानित आपको कहाँ से मिला? आज ये वाको इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप से मिला है, किक बॉक्सिंग में। किक बॉक्सिंग में कहाँ पे आपको किया गया? ये गोवा में किया गया था। गोवा में किया गया। आने वाला जनरेशन में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो एक कैद में रहती है आज के जनरेशन में कि घर से नहीं निकलेंगे, कहीं कुछ ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए बस यही मैसेज है कि हादसा से नहीं डरें, आप खुद बल अपना बनाएं, आप उस हादसे से लड़ने का अपना प्रयास करें। मुझे भी बहुत बोला गया था कि इतनी दूर जाओगी, बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर रिस्क लेना तो पड़ेगा, तभी हमारे देश का नाम रोशन होगा। अब घर में बैठे बैठे हमारे देश का नाम रोशन नहीं हो सकता। क्या नाम हुआ? रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत दाय हलीमा हेल्थ क्लिनिक में वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। इस शिविर में करीब 300 लोगों को पहला डोज दिया गया। आयोजकों के अनुसार ये शिविर 7 तारीख तक चलेगा। इस मौके पर रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ता शहजाद अंसारी, मास्टर शाहिद हुसैन, आफ्ताब कलाल सहित इस वार्ड के तमाम निवासी उपस्थित थे। इस शिविर में आने वाले लोगों का ख्याल रखते हुए लोगों को नाश्ते का पैकेट दिया गया, जिससे शिविर में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। 89 नंबर वार्ड पर हो रहा है। फास्ट डोज चल रहा है, सभी फास्ट डोज ले रहे हैं। फास्ट डोज सभी कोविडशील्ड। हाँ, 220 से ज़्यादा हुई है, तो प्लस है, 220 प्लस। 300 वैक्सीन देने का। 300 कूपन हम दे दिए, मगर 300 लोग अभी तक लिए नहीं है, लिए 220। हाँ, हाँ अभी चलेगा, अभी 4 बजे तक। हाँ, 84 डेज़ का बाद सेकेंड डोज का मिलेगा, जो फर्स्ट डोज मिला है। कल हम लोग भी चलेगा, अभी 7 तारीख तक चलेगा ये कैंप। आज से शुरुआत 7 तारीख तक चलेगा। 7 तारीख तक चलेगा। हाँ, इसमें 6 दिन होगा। हाँ, सेकेंड डोज जो मिलेगा, अगर हम लोग को बोला जाएगा तो इसी में दे देंगे। हाँ, आज सिर्फ फर्स्ट डोज दिया गया। ठीक है। अतनु लाहा वार्ड के असिस्टेंट आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आज दाय हलीमा में वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया। यहाँ वार्ड नंबर 89 और अंजुमन दाय हलीमा सेंटर में, मेडिकल सेंटर में 300 आदमी का इंतज़ाम किया वैक्सीन देने के लिए। वो हाँ, टोकन इशू हुआ है, 200 प्लस पार हो गया है, 220 पार हो गया है। फर्स्ट डोज चल रहा है और सेकंड डोज इसी में कोई आता है तो सेकंड डोज इसमें दिया जाता है। बोलिए। ममता बनर्जी का निर्देश में ये कार्यक्रम चल रहा है।
इसके लिए वार्ड वाइज हर वार्ड में ये प्रोग्राम चल रहा है, पंचायत में, वार्ड में, सब तरफ। और सोशल डिस्टेंस मान के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत पीसफुल काम हुआ है यहाँ पर। और हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, जिस तरह वो खड़ी रहती है उस तरह हम लोग सबको मिलजुल के काम कर रहे हैं। वर्कर जितने भी है सोशल वर्कर उनका सैनिक है। हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेनेंस रखते हुए ये कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और टिफिन वगैरह का भी इंतज़ाम किए हैं, अपना तरफ से इंतज़ाम किए हम लोगों ने। जो आए हुए, हमारा नाम मोहम्मद शहजादा, वार्ड नंबर 89 इंचार्ज। कृष्ण कुंदू की पत्नी रंपा कुंदू ने 19 अगस्त को बांकुरा गंगा जल घाटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शालतोड़ा की विधायक चंदना बाउरी ने अपने ड्राइवर के साथ भागकर शादी की है। गंगा जल घाटी पुलिस ने दुल्हन को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और विवाहितर संबंध तोड़ने की धमकी देने के आरोप में कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना में आज शालतोड़ा विधायक चंदना बाउरी ने बांकुरा जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन चूंकि वो विधायक है इसलिए ट्रायल कोर्ट ने मामले को बांकुरा कोर्ट के बजाय बारासात स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। सरकारी वकील सज्जल बारिक ने कहा कि चंदना बाउरी आज बांकुड़ा कोर्ट में सरेंडर करने आई थी, लेकिन विधायक होने के कारण उन्हें बारासात कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि चंदना बाउरी के वकील ने यहाँ याचिका दायर की, लेकिन न्यायाधीशों ने उन्हें बारासात अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। चंदना बाउरी के वकील लोकेश मुखर्जी ने कहा कि उनके मुवक्किल आज खुद सरेंडर करने के लिए कोर्ट में आए, लेकिन चूंकि वो विधायक है इसलिए माननीय जस्टिस ने उन्हें बारासात कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि चर्चा कर बरसों में समर्पण की तिथि तय करेंगे। बांकुरा से नवाब सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। চন্দনা বাউরি এমএলএ শালতোড়া বিধানসভা উনি আজকে সারেন্ডার করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু উনি এমএলএ এবং তার জন্য স্পেশাল কোর্ট বারাসতে ইনিশিয়েট হয়েছে এবং ওনার এখানে বিচার করার কোর্ট মনে করেছেন যে এখানে বিচার করা যাবে না, সেই জন্য ওনার যে অ্যাডভোকেট আমাদের হিয়ারিং শুনে উনি নট প্লেস করেছেন এবং উনি ওইখানে সারেন্ডার করবেন বলে উনি নট প্লেস করেছেন। কবে সারেন্ডার করবেন ওটা ওনার আমরা বলতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তো আজকে? উনি জজ সাহেবের কোর্টে সারেন্ডার করেছিলেন এবং হিয়ারিং হয়েছে। হিয়ারিংয়ের পরে এটাই ওনারাও হয়তো বুঝেছেন যে এটা এখানে সারেন্ডার করাটা ঠিক হয়নি এবং সেই জন্যে ওনারা পিটিশন নট প্লেস করেছেন। আপনার নাম? আমার নাম সজল বারিক। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.